willing to be the voice in these last days to lift up the name of the Lord, to teach people dependency on God. But before we can do that, we ourselves have to learn to depend upon God. Hallelujah. ये जो दिन है, इस जो धरती पर जो आए हैं, इन दिनों में जो कुछ हो रहा है, इन दिनों में परमेश्वर ऐसे लोगों को खड़ा कर रहा है जो परमेश्वर के लिए खड़े होंगे, परमेश्वर के लिए एक आवाज होंगे, वो परमेश्वर का वचन को लेकर लोगों तक पहुंचाएंगे कि परमेश्वर पर कैसा डिपेंड होना, परमेश्वर पर कैसा नजर लगाना बहुत जरूरी है. इट इज सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज द अर्थ इज गोइंग टू थ्रू नॉट ओनली a physical lack, but the earth is going through a spiritual lack, and God is going to raise up mighty men and women of God, sons and daughters of God. Even young people are going to be raised up in these last days to be a voice for the Lord. Hallelujah. God is going to raise up. I'm speaking by the Spirit of God. God is going to raise up young people. I see young people in the Spirit. I see children in the Spirit. Small children are going to prophesy, and sons and daughters are going to be prophesying, and especially daughters. Be ready for it. Daughters of the living God. The enemy has played havoc in your life. शैतान ने बहुत कुछ खिलवाड़ किया आपने जिंदगी के साथ, आपकी जिंदगी के साथ ऐसा खेल खेला कि आपको नीचे डालने की कोशिश की, आपका जो अनॉइंटिंग था वो निकालने की कोशिश की. लेकिन परमेश्वर आपको कहता है कि आप परमेश्वर की बेटी है, आप परमेश्वर का बेटा है. By the way, there is no gender in the kingdom of God. In Christ Jesus, there is no male nor female, nor Jew nor Gentile. Everybody are the sons. Those who believe in the Lord, they are the sons of God. Hallelujah. जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वो परमेश्वर के बेटे हैं. Hallelujah. Thank you, Jesus. I remember, as I was growing up and going through all those times of rejection in my life, sometimes my dad used to, in spite of all the rejections I faced, sometimes he used to be saying some words over me. Although he said a lot of negative words, but sometimes my dad used to say to me that you are my son. He used to say, you are my son. You know why? Because I used to do everything like how a boy should be doing, like climbing up on trees and cutting wood and doing all these boyish things, wearing pants and short pants and running around in the village. I was a typical boy. So my dad used to say, you're my son. So I still remember that. So God says to you, you're my son. Now, whether you may be, a daughter, but God says you're my son. Hallelujah. So today's word, whatever the Lord is speaking today, is the Lord is telling you, God wants you to be encouraged today. This is a word of encouragement for each and every one. Come on, take heart, take courage. Amen. Hallelujah. The Lord is your provider. So now we see in 1 Kings chapter 17, we see the story of Elijah. Praise God. Amen. Hallelujah. Sons and daughters of God, be ready. No matter how much the enemy has tried to put you down, God says to you that he has chosen you to be a voice. And your life may be wild, and your life may be, you may be thinking, what's the meaning of my life? Nobody knows me. ऐसा शायद आपको लगता है कि कोई मुझे पहचानता नहीं है, कोई मुझे जानता नहीं है. So by the way, Elijah's story, it's always an inspiration to me, and I always think like, who knew Elijah? कौन जानता था एलिया के बारे में? कौन जानता था? एलिया पहला परमेश्वर के उपस्थिति में था. एलिया, he was hidden in the presence of God. He was hidden in the cave. वो परमेश्वर के सामने था. He gives this testimony here. So he was not really known by people, but he was in the presence of God, and because he was in the presence of God, he just became famous just like that. Because he had the word of the Lord in his mouth, he declared the word of the Lord. एलिया के मुंह में परमेश्वर का वचन था. हालेलुया. और परमेश्वर के वचन के द्वारा सबको पता चला एलिया कौन है. हालेलुया. क्योंकि उन्होंने एलिया के परमेश्वर
की सामर्थ्य देखी। हालेलुया। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एलिजा। हम एलिया के बारे में आज बात करेंगे। हालेलुया। आर यू रेडी? एंड आई जस्ट वांट यू टू रिजॉइस बिकॉज गॉड लव्स यू सो मच। परमेश्वर आपसे इतना प्यार करता है, एंड आई जस्ट वांट यू टू बी सो मच रूटेड एंड ग्राउंडेड इन हिज लव। हालेलुया। So we just read here 1 Kings chapter 17. In English I will read. And Elijah the Tishbite of the inhabitants of Gilead said to Ahab, as the Lord God of Israel lives before whom I stand, there shall not be dew nor rain these years except at my word. Hallelujah. So I'll just read this in Hindi. I'll try to read it. Okay. तिशबी एलिया जो गिलियाद के परदेशियों में से था, उसने आहाब से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ इन वर्षों में मेरे बिना कहे न तो मेह बरसेगा और न ओस पड़ेगी। हालेलुया। सो व्हाट इज ही डूइंग? वो क्या करता है? एलिया, परमेश्वर ने उसके मुंह में एक वचन दिया है। सो डिपेंडेंसी, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डिपेंडिंग ऑन गॉड स्टेप बाय स्टेप। हालेलुया। एंड आई नो दिस वर्ड इज गोइंग टू एनकरेज अ लॉट ऑफ यू, स्पेशली दोज हु आर प्रीचिंग द गॉस्पेल ऑफ जीसस क्राइस्ट। परमेश्वर के जो सेवक जो है, जो मुझे अभी देख रहे हैं, ये आपके लिए है, और जो लोग देखेंगे इसके बाद, और जो परमेश्वर ने चुना है, ये वचन आपके लिए एक रीमा वर्ड होगा। हालेलुया। सो परमेश्वर एक वचन हमको देता है जो हमको लोगों तक पहुंचाना है। हालेलुया। सो परमेश्वर ने एलिया के मुंह में एक वचन दिया। क्यों ऐसा वचन दिया? क्योंकि उस देश में जो हो रहा था कि परमेश्वर के विरुद्ध था। Hallelujah. Whatever was happening in Israel at that time, it was against God. God did not like it. People had left the living God. लोगों ने जीवित परमेश्वर की आराधना छोड़कर मूर्ति पूजा शुरू की थी, शैतान की पूजा शुरू की थी, और परमेश्वर बहुत गुस्सा था, और परमेश्वर ने एलिया को चुना। और इन दिनों में जो हो रहा है इस धरती पर, परमेश्वर ने आपको चुना है। God has chosen you. This is a personal word for you. और परमेश्वर ने एलिया को बोला कि ये वचन जाकर आहाब राजा को दे दो। सो डरे बिना, डर के बिना वो गया। आपको डरना नहीं है। जो परमेश्वर ने आपको कहा है कहने के लिए, आपको कहना है, चाहे लोग आपके बारे में कुछ भी कहे। आपको किसी के बारे में डरना नहीं है। कौन क्या कहेगा मेरे बारे में, मेरा नाम बदनाम होगा, शायद लोग मुझे नफरत करेंगे। नहीं, अगर लोग तुझे नफरत करते हैं, करने दो। इस धरती पर हम आए हैं, हम दुनिया के नहीं है। परमेश्वर ने हमको इस दुनिया से अलग किया है। We are not of this world. Hallelujah. If people have to hate us, they will hate us because we belong to God. Hallelujah. People who are living in darkness will not understand the light. जो अंधकार में जी रहे हैं, वो उजाले को कभी समझ ना पाएंगे। Don't even try to understand, make them understand. Hallelujah. Don't try to explain yourself to people. Just give the word. Just give the word. और लोगों को ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है कि आप क्यों करता है, इसलिए करते हैं, इसलिए करता है। सिर्फ आपको वचन बोलना है। हालेलुया। सो एलिया क्या किया? पहला स्टेप उसने किया, जो परमेश्वर ने उसको बोला, उसने जाकर आहाब राजा को बोला। स्टेप नंबर 1 was total obedience. Amen. It was obedience to God. Now, he went and told that there is not going to be any rain, no dew, no rain. बारिश ना आएगी, सब कुछ सूखा सूखा होगा। ऐसा राजा को उसने जाकर बोला, तो ऐसा ही हो गया। Such was the authority that God had given to his servant Elijah. Hallelujah. Why? Let me remind you again. Authority doesn't come just by somebody laying hands on you. Authority comes by you being dependent on God. Hallelujah. परमेश्वर पर निर्भर होना बहुत जरूरी है। परमेश्वर की उपस्थिति में जाना बहुत जरूरी है। परमेश्वर के सम्मुख में जाना, उसकी उपस्थिति में आना बहुत जरूरी है। वहां से हमारा जो अधिकार है इस सृष्टि पर, वहां से शुरू होता है। हमारा खुद का अधिकार कुछ नहीं है, लेकिन जब परमेश्वर के सम्मुख हम जाते हैं, वहां पर अधिकार आता है। हालेलुया।
So he spoke with authority and it happened. ऐसा सामर्थ परमेश्वर ने एलिया को दिया था. By the way, ये जो एलिया का परमेश्वर है, आपका भी परमेश्वर है, मेरा भी परमेश्वर है. अगर हम विश्वास करते हैं एलिया की तरह, अगर हम विश्वास करेंगे, जो हम कहेंगे वैसा ही होगा. हालेलुया. What you want, you have to declare it. Hallelujah. So now we are talking about dependency upon God. Praise the Lord. Hallelujah. I feel the anointing and I know the Lord is going to speak something to you concerning your situation. आपकी कुछ तो परिस्थिति है, परमेश्वर आपके साथ बात करेगा. Praise God. Hallelujah. So there was no rain. Okay. There was no rain. He spoke his word. That was the first step. Okay. After that step, जब वचन उसने दिया, जब कुछ बोलने का था, वो जब उसने कंप्लीट किया बोलने के बाद में क्या हो गया? Then the word of the Lord came to him saying, Hallelujah. Then the word of the Lord. तब यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा. तब then. Okay, so first he gave the word, then he got another step. Another word came from the Lord for Elijah. It was a personal word for him. Hallelujah. So जब भी हम परमेश्वर का वचन लोगों को देते हैं, देने के बाद परमेश्वर हमारे साथ कुछ बात करता है, तो हमको बहुत ही ट्यून इन रहना है. Hallelujah. Now this is something that it's a weakness of mostly many preachers. This has happened to me many times. मेरे साथ ऐसा कितनी बार हुआ है, जब परमेश्वर ने एक वचन दिया, लोगों तक ये वचन देना है, तो मैंने ये वचन दिया, बाद में परमेश्वर ने मेरे साथ कुछ पर्सनल वर्ड किया, और ये जो पर्सनल वर्ड मुझे दिया गया था, मैंने उस पर ध्यान नहीं लगाया. I did not pay attention to the personal word that God was speaking to me. Hallelujah. I'm freely telling you that everybody makes this blunders and I have made this blunders. Hallelujah. मैंने भी ऐसा किया है कि जब ये वर्ड मुझे आया, पर्सनली मेरे साथ परमेश्वर ने कुछ मेरे लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस रखा था, वो इंस्ट्रक्शन पर्सनल इंस्ट्रक्शन मैंने परमेश्वर का ध्यान नहीं दिया, और ध्यान नहीं दिया इसलिए मैंने बहुत कुछ ऐसा कदम उठाए कि मैं गिर गई, आगे जाकर मैं गिर गई. और परमेश्वर इतना दयालु है कि परमेश्वर ने उसका हाथ देकर मुझे उठाया. हालेलुया. तो परमेश्वर एक वचन देता है लोगों के लिए, लेकिन एक वचन देता है आपके लिए, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम परमेश्वर का सुनना है. हालेलुया. क्योंकि परमेश्वर ने सब कुछ हमारे लिए रखा है. God has kept everything for us, but we are not tuning into what He is telling us, to the instructions that He is giving us. जब हम उसका नहीं सुनते हैं तब हम गलती कर सकते हैं. हालेलुया. परमेश्वर ने शायद आपके लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस रखा है जो आपको सिर्फ मिलेगा जब आप उसकी उपस्थिति में जाएंगे. हालेलुया. अगर आप उसकी उपस्थिति में नहीं जाएंगे और नहीं सुनेंगे उसका वो जो कहता है, तो आप गलत डिसीजंस ले सकते हैं. ओके. हालेलुया. गलत डिसीजंस ले सकते हैं. शायद परमेश्वर कहता है इस तरफ जाना है, आपको लगता है कि सही कि इस तरफ जाना है, तो अगर परमेश्वर राइट में बोलेगा तो आपको लगेगा कि लेफ्ट में जाना है, क्योंकि आपने परमेश्वर के वचन पर ध्यान नहीं दिया, पर्सनल इंस्ट्रक्शंस पर ध्यान नहीं दिया. क्या परमेश्वर ने आपके ऊपर गुस्सा किया? क्या परमेश्वर आपके ऊपर रूठा? Was God so angry with you that He condemned you, that He didn't want to even look at you? No. God understood you and God has spoken to you, and you fell and I fell. आप भी गिरा, मैं भी गिरा. कितनी बार हमने ऐसी गलती की है. हालेलुया. तो परमेश्वर एलिया के बारे में यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर का वचन, एक पर्सनल वचन आया एलिया के लिए, पर्सनल डायरेक्शंस आया. हालेलुया. सो परमेश्वर ने उसको क्या कहा? वर्स 3, गेट अवे फ्रॉम हियर, गेट अवे फ्रॉम हियर, यहां से जाओ. ओके. And turn eastward and hide by the brook Cherith, which flows into the Jordan. Get away from here. यहाँ से चलकर पूर्व की ओर जा और करित नामक नाले में जो यर्दन के पूर्व में है छिप जा. So this was a personal word that came to Elijah. Hallelujah. Listen, my dear people. He declared the word in Israel. He declared the word in Israel that there is not going to be any rain, not dew. Okay. After that, God spoke to him personally. He gave him directions. Okay, यहाँ से उधर जाओ.
नाले के पास जाओ, ओके, एंड इट विल बी दैट यू शैल ड्रिंक फ्रॉम दिस ब्रुक, and I have commanded the ravens to feed you there. Hallelujah. So when God tells you to preach the gospel, preach it. जब परमेश्वर आपको एक वचन देता है लोगों तक पहुंचाने के लिए, आप दे दो. अगर परमेश्वर ने कहा है आपको ये मिनिस्ट्री करना है, आपको करना ही है. आपको फिक्र नहीं करना कैसा होगा, क्या होगा, कल क्या होगा, मैं क्या खाऊंगा, मैं क्या पीऊंगा. यू डोंट हैव टू वरी अबाउट व्हाट यू शैल ईट एंड व्हाट यू शैल ड्रिंक. इफ गॉड सेड टू यू preach the gospel, you preach the gospel. If God says to you give warning for people that this is going to happen and that is going to happen, you tell. If God said to you tell them about my love, you tell them. Okay, hallelujah. आपको चिंता नहीं करने का. यहाँ पर सिचुएशन क्या है, यहाँ पर अकाल पड़ा है, यहाँ पर बारिश नहीं आ रही है. इस धरती पर क्या हो रहा है, इस धरती पर इस समय इकोनॉमिक क्राइसिस हो रही है, लोगों को फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो रहा है, लोगों की नौकरी चली जा रही है. पीपल आर लूजिंग देयर जॉब, पीपल आर लूजिंग मनी, पीपल आर गोइंग डाउन इन देयर बिजनेस. अकाल पड़ा है, लेकिन परमेश्वर का वचन भी कहता है ऐसा. आमोस के पुस्तक में लिखा है, आमोस के बुक में लिखा है कि there will be a famine, not of bread and not of water, but of the word of God. ऐसा अकाल पड़ेगा, परमेश्वर के वचन का अकाल पड़ेगा. हालेलुया. लोगों को वचन ना मिलेगा, वचन ना मिलेगा. Who is he talking about? It's those people who never wanted the word of God. वो लोग जो वचन कभी उनको वो चाहते नहीं थे वचन को, वो सिर्फ पैसों के बारे में उनके मन में था. वो उनका ख्याल अभी पैसों के बारे में ही होगा, वचन के बारे में उनकी सोच नहीं होगी. इसलिए परमेश्वर आपको और मुझको, हमारे जैसे लोगों को खड़ा कर रहा है. हालेलुया. दैट वी हैव टू गिव द वर्ड ऑफ गॉड एंड इट हैज टू रेन डाउन अपॉन द पीपल. परमेश्वर का वचन बारिश के समान आना चाहिए लोगों के ऊपर. हालेलुया. उस समय अकाल पड़ा था, इस समय अकाल पड़ रहा है. हालेलुया. देयर इज एन इकोनॉमिक क्राइसिस on this earth, my dear people of God. And at that time God is speaking to Elijah. I am going to take care of you. God is speaking to you today. I am going to take care of you. Hallelujah. Especially women of God, do not worry. God is saying to you, I love you with an everlasting love. Hallelujah. परमेश्वर आपके साथ बात कर रहा है. Amen. Amen. Thank you, Jesus. So he says, get away from here and turn eastward and hide, chup ja. You hide in the presence of God and God is going to take care of you. आपको चुप जाना है परमेश्वर की उपस्थिति में, आपको जाना है प्रार्थना में, आपको जाना है आराधना में, परमेश्वर की आराधना करना है, परमेश्वर के सम्मुख आना है. हालेलुया. और जब परमेश्वर कहता है वचन दे दो, तो आपको वचन देना है. हालेलुया. कल की चिंता मत करो. हालेलुया. दुनिया की चिंता को छोड़ो, आगे ही बढ़ता ही चल, पाएगा शांति आराम, जीवन मिलेगा तुम्हें. हालेलुया. दुनिया की चिंता को छोड़ो, परमेश्वर के सम्मुख आ जाओ. इज इट एज सिंपल एज दैट सिस्टर? इज इट दैट सिंपल? यू आर टेलिंग मी नॉट टू वरी. आपके मन में शायद आ जाएगा, आपको बोलने में आसान है कि चिंता ना करना, लेकिन मेरा ये प्रॉब्लम है, मेरा वो प्रॉब्लम. मैं समझ सकती हूँ, परमेश्वर आपको समझता है, इसलिए परमेश्वर ने ये वचन हमको दिया है. परमेश्वर का वचन एक जीवन है हमारे लिए. हालेलुया. So what did Elijah do? Elijah went and hid. He hid. Why he had to hide? Why he had to hide? Because he had just given a word. उसने एक वचन दिया था. एक वचन बहुत ही एक खतरनाक वचन था उस इज़राइल के राजा को कि बारिश ना आएगा. उसके कहने से बारिश रुक गई और पूरा इज़राइल में बारिश ना आई. सब लोगों को इतना तकलीफ हुई. किसके कहने से? एलिया के कहने से. उसने क्या कहा? अपना खुद का वचन ना कहा, उसने परमेश्वर का वचन कहा. परमेश्वर का
वचन को सुना और उसने दे दिया, हालेलुया। और ऐसा ही हो गया जैसे एलिया ने कहा। सो उसको चुपना था, हालेलुया। सो समटाइम्स व्हेन यू गिव अ वर्ड टू पीपल, you are going to be led by the Lord. Come and sit in my presence. So please obey that. Obey him step by step. You notice here, आपको एक चिंता करना, यहाँ पर एक सोच लगाना है. You have to give it a thought over here. God did not tell Elijah everything that is going to happen all at once. उसने एलिया को सब कुछ नहीं बताया, ऐसा होगा, ऐसा होगा, आपको ऐसा करना होगा, ऐसा करना होगा. पहले ही उसने सब कुछ उसको नहीं बताया, स्टेप बाय स्टेप बताया, हालेलुया. सो दिस इज डिपेंडिंग ऑन गॉड, स्टेप बाय स्टेप. उसको पता नहीं था कि क्या होगा, उसको सिर्फ पता था कि वचन देना है. बाद में उसने कहा कि यहाँ पर आ जाओ, वहां पर जाओ, और वहां पर जाकर आपको नाले के पास छुपना है, और बाद में मैं कौवे को भेजूंगा, आपको वो खाना देंगे, और आपको उस नाले में से पानी पीना पड़ेगा, और बाद में वो जो कौवे आ रहे हैं वो कौवे आपको खाना देगा. सो ऐसा ही हो गया. नाउ ये कौवे जो है, these are the crows and they were not actually good birds. ये जो अच्छे बर्ड्स नहीं थे, ये अच्छे पक्षी नहीं थे. वो एक इज़राइल में रेवंस को अनक्लीन बर्ड्स, अशुद्ध ऐसा समझा जाता है वो रेवंस को, वो कौवा को, ओके. लेकिन परमेश्वर दिखाना चाहता है उसको भी, एलिया को भी और हमको भी, कि हमको चिंता नहीं करने का कि हमारा सप्लाईज कैसे आ जाएगा, हालेलुया. हमारा सप्लाईज कैसे आ जाएगा. अगर आप डिपेंड करते हैं परमेश्वर पर, तो परमेश्वर आपको कैसे भी देगा. एंड मेनी टाइम्स वी प्लेस आवर एक्सपेक्टेशंस ऑन पीपल दैट अ सर्टेन पर्सन विल गिव अस. कभी कभी हमारा ऐसा सोच होता है कि शायद ये अमीर जो लोग हैं, शायद ये मुझे मदद करेगा, शायद वो मुझे मदद करेगा. हम ऐसे सोचते हैं, हालेलुया. तो जब मेरे बच्चे बहुत ही छोटे थे, मैं ऐसे सोच रही थी कि परमेश्वर ने वचन में कहा है कि कभी किसी के पास जाकर मांगना नहीं है, हमको मांगना नहीं है, उधार नहीं लेना है, हालेलुया. तो फिर मैं सोच रही थी, ऐसा सोच, नादान थी मैं उस समय, मैं ऐसे सोचती थी शायद ये मेरे एक अमीर दोस्त है, शायद उससे कुछ मुझे मिलेगा, शायद वो मुझे मदद करेगी. मैं सोच रही थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. जब भी मैं ऐसी सोचती थी ना, कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि उस व्यक्ति से मुझे कुछ मदद मिला जो मैं सोच रही थी. लेकिन गॉड हैज गिवन मी थ्रू अनएक्सपेक्टेड सोर्सेस. कभी कभी ऐसे गरीब को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया मुझे और मेरे बच्चों को मदद करने के लिए, और उस समय परमेश्वर ने दिखा दिया कि ये डेफिनेटली ये परमेश्वर का एक चमत्कार है, हालेलुया. सो वी कैन एक्सपेक्ट अ रिच पर्सन टू कम एंड गिव अस, बट व्हेन अ पुअर पर्सन इज कमिंग एंड गिविंग इट टू अस, इट इज टोटली अनएक्सपेक्टेड. You can expect a person who believes in Jesus who to understand you, hallelujah. Are you getting what I'm saying? Sometimes a person who does not even believe in Jesus, who does not even know God, will be so kind to you. आप समझ सकते हैं मैं क्या बात करना चाहती हूँ. कभी कभी ऐसे लोग आते हैं हमारे लाइफ में जो यीशु मसीह को जानते तक नहीं है, लेकिन सिर्फ उनका परमेश्वर उनको इस्तेमाल कर रहा है, और हमको वो इतना दया दिखाते हैं, हमारे पास आकर इतना अच्छी तरह बात करते हैं, हमको मदद भी करते हैं, और हम देखते ही रहते हैं कि ये डेफिनेटली परमेश्वर का हाथ है, हालेलुया. तो इतने साल में सेवकाई में जो हूँ, मुझे इतना पता है, परमेश्वर का वचन कहता है, some trust in chariots, some trust in horses, but we will remember the name of the Lord. हालेलुया. घोड़ों पर और रथों पर हमको हमारा डिपेंडेंसी नहीं, हमारा विश्वास नहीं है, लेकिन हमारा विश्वास परमेश्वर पर है, हालेलुया. किसी का इन्फ्लुएंस लेने की जरूरत नहीं है, किसी एमएलए का, किसी मिनिस्टर का इन्फ्लुएंस लेने के लिए जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं हम कौन है, हालेलुया. हम जानते हैं कि हम परमेश्वर के प्रतिनिधि है, हम परमेश्वर के एम्बेसडर्स हैं, हम परमेश्वर के सेवक लोग हैं. परमेश्वर ने हमको कहा है कि उसने हमको चुना है और उसने हमको अभिषेक दिया है, और परमेश्वर ही हमारी मदद करेगा, वो हमारा मददगार है, हालेलुया. पर्वतों को देखूंगा मैं, कौन है मददगार मेरा, मेरा मददगार खुदा है.
मेरा मददगार खुदा है, जिसने जमीन और आसमां को बनाया, जिसने जमीन और आसमां को बनाया। हालेलुया, हालेलुया। तो मुझे पहले पहले ऐसा लगता था कि शायद ये अमीर लोग मुझे मदद करेंगे, मेरे बच्चे इतने छोटे हैं, 5 बच्चे इतने छोटे हैं, और भाड़े के घर में रहती हूँ, शायद कोई मुझे समझ लेगा, सम पीपल विल अंडरस्टैंड मी, दिस। लेकिन परमेश्वर ने सारे दरवाजे बंद किए थे मेरे लिए। वहां पर जहां पर भी जिस दरवाजे पर मैं नजर डालती थी, परमेश्वर वो दरवाजा हमेशा मेरे लिए बंद रखता था, क्योंकि वो मुझे सिखाना चाहता था कि सच्चा दरवाजा वो ही है। हालेलुया। जब वो कहता है तभी होगा। हालेलुया। परमेश्वर के मर्जी के बिना कोई भी आपको मदद नहीं कर सकता है। हालेलुया। अगर कोई भी आपको मदद करता है इस समय, अगर परमेश्वर की अगर कोई भी मदद आती है तो परमेश्वर की तरफ से ही आते हैं। एवरी गुड गिफ्ट कम्स फ्रॉम गॉड। हालेलुया। सो व्हेन यू आर सर्विंग गॉड, गॉड विल टेक केयर ऑफ यू। यू डोंट वरी। हालेलुया। आपको डरना नहीं है। सो एलिया को परमेश्वर ने जो कहा था, चुप जाओ, नाले के केरित नाले के पास जाकर चुप जाओ, उसने ऐसा ही किया। नाले से वो पानी पी रहा था और हर रोज उसको वो कौवे आकर रोटी और मांस दे रहे थे। The crows were coming and giving him sandwich, meat and bread morning and evening. Hallelujah. Isn't that beautiful? Totally unexpected sources. Hallelujah. दूसरे पक्षियों को क्यों नहीं इस्तेमाल किया, और दूसरे किसी को क्यों नहीं भेजा, स्वर्गदूत को क्यों नहीं भेजा? क्योंकि एलिया परमेश्वर की उपस्थिति में रहता था ना। और वचन भी कहता है कि परमेश्वर ने हम दूतों को भेजा है हमारे पास कि हमको मदद करने के लिए। क्यों ऐसा नहीं हुआ कि स्वर्गदूत आकर उसको दे दिया? नहीं, परमेश्वर हमको भी कुछ एक लेसन देना चाहता था। जब आप एक्सपेक्टेशंस परमेश्वर पर रखते हैं, परमेश्वर किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है। हालेलुया। एक कहानी मैंने सुनी थी, शायद आपने भी सुना है। एक गरीब औरत थी और उसका एक पड़ोसी था जो उसको उसके विश्वास को देखकर बहुत ही उससे नफरत करता था। वो पड़ोसी जो था वो बहुत ही अमीर था और वो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करता। He was an atheist, he didn't believe in God। लेकिन ये जो गरीब औरत थी, उसके पास ये सिर्फ एक कहानी है, बाइबल में नहीं है। तो उसके पास से परमेश्वर पर इतना स्थिर उसका विश्वास था। हालेलुया। तो एक बार ऐसा हो गया कि उसके उस औरत के पास कुछ रोटी नहीं थी, कुछ भी नहीं था। तो और ये जो पड़ोसी था हमेशा उसके विश्वास को मॉकिंग करता था, उसके विश्वास का मजाक उड़ाता था और ऐसा बोलता था, क्या परमेश्वर करती है ऐसा। लेकिन मैं खास करके औरतों को ये बोलना चाहते, खास करके वुमेन्स को कहना चाहती हूँ, आपके परिवार के लिए जो परमेश्वर पर विश्वास रखा है वो विश्वास को स्थिर करना। मेरी बहन, माय डियर सिस्टर, गॉड इज गोइंग टू लुक आफ्टर यू एंड योर फैमिली, यू डोंट वरी। हालेलुया। सो ये औरत जो थी उसने उस पड़ोसी के शब्दों पर ध्यान नहीं लगाया। उसने जाकर एक दिन उसके पास कुछ नहीं था और वो प्रार्थना करती थी, हमेशा की तरह हाथ उठाकर वो प्रार्थना करने लगी और उसने ऐसा कहा है, परमेश्वर आज की रोटी तू मुझे देगा, मुझे पता है कि तू देगा। तो पड़ोसी जो उसका अमीर पड़ोसी जो था खिड़की से उसको देखने लगा कि ये औरत मांग रही है और उसको हंसना आया। ये क्या, उसने अंदर वो हंसने लगा, क्या ये बात कर रही है, कहाँ है उसका परमेश्वर? आज मैं सच्ची उसका मजाक उड़ाऊंगा। आई एम गोइंग टू रियली मेक फन ऑफ हर टुडे। शी इज आस्किंग गॉड, गिव मी डेली ब्रेड, सो आई विल डू समथिंग, आई विल गो एंड गेट द ब्रेड। सो वो गया और उसने ब्रेड को खरीदा और कुछ और खरीदा और आया। वो औरत जो थी वो घुटने पर थी, वो प्रार्थना कर रही थी और
खिड़की से अंदर वो चुप गया और खिड़की से के अंदर उसने वो ब्रेड को फेंका उसके कमरे में, उस औरत के कमरे में वो ब्रेड को फेंका। और जब वो ब्रेड को फेंका, ये औरत ने इस ब्रेड को उठाया और उसने धन्यवाद परमेश्वर को दिया। थैंक यू लॉर्ड दैट यू गेव मी दिस ब्रेड। दिस मैन थ्रू द ब्रेड फ्रॉम द विंडो एंड ही हिड हिमसेल्फ, राइट? सो शी टुक दैट ब्रेड एंड शी सेड थैंक यू जीसस फॉर गिविंग मी दिस ब्रेड। सो उस समय वो जो पड़ोसी वो चुप गया था, वो आया खिड़की के पास और उसने बोला, अरे रे रे रे, आप क्या सोचा कि आपके परमेश्वर ने दिया? ये ब्रेड तो मैंने दिया, मैंने खरीदा और मैंने डाला आपके खिड़की के अंदर, मैंने ही फेंका ये ब्रेड। तो उस औरत ने ऐसा देखा उसको, बाद में ये जो ब्रेड था उसने बोला, आके उठाकर परमेश्वर को बोला कि है परमेश्वर, मैं धन्यवाद देती हूँ कि तूने मुझे ये ब्रेड को दिया है, मेरी रोटी को, रोज की रोटी को दिया है। I thank you Lord for you have given me this bread, even if you had to use the devil to bring it to me. ऐसा ये कहानी है, शैतान को इस्तेमाल किया मुझे देने के लिए, नो प्रॉब्लम, थैंक यू लॉर्ड फॉर गिविंग मी माय ब्रेड। इस औरत का ध्यान फोकस सिर्फ परमेश्वर पर था। हालेलुया, हालेलुया। ये सिर्फ एक कहानी है जो मैंने सुनी थी। आई जस्ट वांट टू एनकरेज यू थ्रू दिस, बट it is not in the Bible. Praise the Lord. Hallelujah. But the dependency on God, हमारा फोकस परमेश्वर पर, हालेलुया। कोई भी आपके विश्वास का मजाक नहीं उड़ा सकता, परमेश्वर आपके साथ हमेशा रहेगा। हालेलुया। Many people have questioned my faith. Many people have asked me, how can you live like this? How can you depend upon God? बहुत सारे लोगों ने ऐसे मुझे पूछा भी, कैसे आप 5 बच्चों की रखवाली करेगी, अकेली सिंगल मॉम होकर 5 बच्चों को कैसे बड़े करेंगे? How are you going to educate them? How you are going to put them in college? How you going to get them married? All these things they questioned me. I only said to them, the Lord who was with me yesterday, God is going to be with me today. They made fun of me. I said to them that I am living by faith. लोगों ने मुझे ऐसा भी एडवाइस दे दिया, वो ये क्या कर रही है, आप गॉस्पेल प्रीच कर रही है, सुसमाचार को प्रकट कर रही है, मिनिस्ट्री रन कर रही है, तो आपको ऐसा क्यों करना है? आप जाकर किसी होटल में काम करो, रिसेप्शनिस्ट का काम आपको मिलेगा, ऐसा काम मिलेगा, वैसा काम मिलेगा। और मैं आर्टिस्ट भी हूँ, मैं पेंटिंग भी करती हूँ, तो मैं पेंटिंग करती थी और सुसमाचार भी प्रकट करती थी। घर का बाड़ा परमेश्वर ने जो गिफ्ट दिया था मैं इस्तेमाल करती थी। हालेलुया। और परमेश्वर मुझे किसी भी तरह, परमेश्वर इस पेंटिंग्स का सेल होता था, मैं परमेश्वर पर इतनी डिपेंडेंट थी। लेकिन टोटली वो जो सिर्फ प्योर फेथ, परमेश्वर पर विश्वास, और ये भी विश्वास, बाय द वे, ये जो विश्वास है वो हमारा कुछ भी घमंड करने का नहीं है। देयर इज नथिंग टू से आई बिलीव, I have faith in God. This is my faith. मेरा कुछ नहीं है। ये विश्वास भी जो है, ये विश्वास है वो परमेश्वर का दिया हुआ एक वरदान है, हमारा कुछ नहीं है। God gave me this faith in Him. God taught me to depend upon Him. परमेश्वर ने मुझे सिखाया। हालेलुया। बहुत लोगों ने मेरे इस विश्वास का मजाक उड़ाया, कैसे करेगी ऐसा करके, लेकिन परमेश्वर ने कभी भी एक फी भी मेरे बच्चों की कभी भी लेस नहीं हुई। सब कुछ हुआ यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। क्यों? क्योंकि स्टेप बाय स्टेप मेरा डिपेंडेंसी परमेश्वर पर था। हालेलुया। और जो आज मैं प्रचार कर रही हूं, ये किसी बाइबल कॉलेज से नहीं आया है, ये मेरे खुद की लाइफ का एक्सपीरियंस है। ये वचन का एक जो एक्सपीरियंस, ये अनुभव जो मुझे मिला है, यहां से आया है। हालेलुया। इट हैज कम फ्रॉम द लॉर्ड। इट इज गॉड हु हैज बीन फेथफुल टू मी। हालेलुया। ही इज द फेथफुल वन, ही इज द अनचेंजिंग रॉक। हालेलुया। वो हमारी चट्टान है। जो कोई इस चट्टान पर अपना घर बांध लेता है, परमेश्वर कहता है कि कोई भी तूफान आपको नीचे नहीं उड़ा सकता, नीचे नहीं डाल सकता। हालेलुया। आप गिर ना पाएंगे। हालेलुया। अब अगर आप हिल भी जाए तो परमेश्वर आपको स्थिर रखेगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी टू जीसस, आमेन।
So the ravens were sent by God. परमेश्वर ने कौवों को भेजा एलिया को सुबह और शाम. Come on, सुबह और शाम, morning and evening. Come on, morning. There is light in the mornings. Hallelujah. And there is darkness coming in the evenings. Whether it is light in your life right now, or whether it is getting dark in your life right now, God is the same yesterday, today and forever. शायद आपके जीवन में इस समय एक सुबह आ गया है. शायद आपके जीवन में इस समय एक शाम आ गई है. I don't know what it is. शायद आपके जीवन में हंसी है इस समय, शायद आपके जीवन में दुख है इस समय, लेकिन परमेश्वर कहता है कोई भी आपका कुछ भी जो आपका समय, whatever time it is, I am sending the ravens to you. I am sending my help to you through unexpected sources. The ravens are symbolizing unexpected sources. God is going to provide for you. Hallelujah. परमेश्वर आपको देगा. परमेश्वर आपका प्रोवाइडर है. Hallelujah. Praise the Lord. And I know this word is encouraging you. Amen. You, servant of God who is watching me, be encouraged that God loves you so much. The brook, नाले के पास वो पानी पीता था और उसको वो खाना भी मिल रहा था. Praise the Lord. Hallelujah. And it will be that you shall drink from the brook, and I have commanded the ravens to feed you. I have commanded. मैंने उस कौवों को आज्ञा दी है. Hallelujah. मैंने उस कौवों को आज्ञा दी है. My dear people, those of you who are facing economic crisis at this time, those of you who are facing financial difficulty at this time, if you stand up for God and if you say, I am going to love my God, I am going to just keep trusting in my God, God is saying that He has commanded the ravens to feed you. Hallelujah. अगर आप आपके विश्वास में स्थिर रहेंगे परमेश्वर पर, परमेश्वर के लिए खड़ी रहेगी. Hallelujah. परमेश्वर ने कौवों को आज्ञा दिया है कि आकर आपको मदद देने के लिए. Hallelujah. God has commanded unexpected sources to come and feed you. Are you getting this? God has commanded. Isn't that beautiful? परमेश्वर ने आज्ञा दिया है. So all of a sudden, अचानक कोई आकर आपको कुछ देता है, वो अचानक कुछ भी होता नहीं है. परमेश्वर ने ऑलरेडी किसी को आज्ञा दिया है आपको मदद करने के लिए. परमेश्वर ने ऑलरेडी किसी के साथ बात किया है. आप सिर्फ आपके आंखें उसके ऊपर डालो. You just keep your eyes focused on God. You just wait for that personal word from God. What should I do now, Lord? Where should I go now, Lord? If He says wait, wait. Hallelujah. If He says go, you go. Hallelujah. Where you go, I go. What you say, I say, God. What you pray, I pray. What you pray, I pray. Where you go, I go. What you say, I say, God. What you pray, I pray. What you pray, I pray. Hallelujah. Thank you, Lord. So that's so good. Praise Jesus. So he went. और वो ऐसा ही किया. So he went and did according to the word of the Lord. So एलिया चला गया और जो परमेश्वर ने उसको कहा था वैसा ही उसने किया. Let me repeat that. So he went and did according to the word of the Lord. यहोवा ने जो कहा था वैसे ही एलिया ने किया. Hallelujah. What is the criteria for our provision from God? Listen to the Lord. Whatever He is saying, you do it. If He is saying, come sit in my presence, अगर वो कहता है आकर मेरी उपस्थिति में आकर बैठो, तो प्लीज आप जाकर बैठो. आपके प्रोविजन के लिए यहां वहां भटकने की जरूरत नहीं है. अगर वो कहता है यहां आकर बैठो तो यहां आकर बैठो. अगर वो कहता है वहां जाओ तो वहां जाओ. यीशु मसीह ने क्या कहा अपने चेलों को? उसने क्या कहा जब वो इतने टेंशन में थे, हमारा टैक्स कैसा देंगे, हम कहां से देंगे? तो परमेश्वर ने क्या कहा चेलों को? जाकर उस मच्छी को पकड़ो, एक मच्छी को पकड़ो. जब आप मच्छी को पकड़ेगा उसके मुंह में आपको एक सिक्का मिलेगा. You will find a coin in the fish's mouth. And they went and they obeyed and they found a coin in the fish's mouth. Hallelujah.
Our God is a God of the supernatural. हमारी गलती क्या होती है? ये गलती होती है हमारी कि हम सिर्फ इस फिजिकल नजर में देखते हैं दुनिया को। हम स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं, हम आत्मिक लोग हैं। अगर हम आत्मिक लोग हैं तो परमेश्वर कहता है कि आपके आत्मा की नजर को खोलिए और देखो जो मैंने आपके लिए रखा है। Eyes have not seen, ears have not heard, neither have we imagined. Hallelujah. The great and mighty things that God has prepared for those who love him. Hallelujah. न आंखों ने देखा, न कानों ने सुना, न मन में भी आया, इतने सारे चीज जो परमेश्वर ने उनके लिए रखे हैं जो उसकी मोहब्बत करते हैं, उसकी मोहब्बत करते हैं। The Lord has prepared for those who love him. Hallelujah. किसके लिए रखा है? जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं। Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Isn't that beautiful? Your eyes have not seen. आपके आंखों ने नहीं देखा, कानों ने नहीं सुना। So what do you mean, Lord? आपके आत्मिक आंखों से देखो, आपके आत्मिक कानों से सुनो। Hallelujah. Depend on the Lord step by step. Hallelujah. Oh, praise God, praise God. I know this word is encouraging many of you. Please share the video. Let people know how good our God is. Please keep sharing the video. This is going to be really good and a blessing to people. Hallelujah. So he went and did according to the word of the Lord. जैसा परमेश्वर ने उसको कहा वैसा ही एलिया ने किया. Nothing less, nothing more. If God says go straight, you go straight. You don't turn to the right and don't turn to the left. इधर नहीं जाना, उधर नहीं जाना. परमेश्वर ने कहा है कि सीधा जाओ तो सीधा जाओ. हालेलुया. अगर परमेश्वर कहता है आज का दिन आपको सफेद कपड़े सफेद शर्ट पहनना है, you have to wear a white shirt today, so you wear a white shirt. Don't think no, but I will look good in a blue shirt, so I will put a blue shirt. हाँ, ऐसा नहीं है. जो कुछ परमेश्वर कहता है वैसा ही आपको करना है, क्योंकि परमेश्वर जो कुछ कहता है ना वो उसने ऑलरेडी सोचकर ऑलरेडी प्लान किया है कि कैसा होगा, क्या होगा, किस टाइप के लोग आपको मिलेंगे. हालेलुया. Thank you, Lord. Do you know it's important to even ask the Lord what you're going to wear today? You know it's important to do that. You can do that. Hallelujah. When you go shopping, जब आप shopping को जाते हैं, it's so beautiful, isn't it? Just love the Lord so much. परमेश्वर से ऐसा प्यार करो ना कि वो आपका एक प्रेमी है. Hallelujah. वो आपका बेस्ट फ्रेंड से भी ज्यादा, एक भाई से भी ज्यादा आपसे प्रेम करता है. Hallelujah. He's a good father. He's a friend. You can, he's so close to you. आपने कितने करीब है. So even when you go shopping, you take the Lord, you ask the Lord and you say, God, should I buy this? क्या मुझे ये जरूरी है? क्या मुझे ये खरीदना है? अगर आप परमेश्वर को पूछेंगे तो परमेश्वर आपको बताएगा. तो आप कहेंगे कि परमेश्वर का आवाज कहां से आता है, वो तो एक कंप्लीटली डिफरेंट टीचिंग है. लेकिन मैं एक बता सकती हूं आपको, जो लोग परमेश्वर की उपस्थिति में जाने की आदत बनाते हैं ना, वो परमेश्वर का आवाज को आसानी से सुनेंगे. हालेलुया. The ones who make a practice of being in the presence of God, they will be able to identify the voice of the Lord. So जब आप सुपरमार्केट में है, मॉल में है, तो आपको कुछ अच्छा लगता है, इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर का अच्छा लगता है. आपको कुछ बहुत अट्रैक्टेड हुआ है एक चीज के लिए, वो आपको खरीदना है. आपके अंदर से ऐसा आता है कि मुझे खरीदना है. तो परमेश्वर से पूछो, क्या मुझे ये खरीदना है? क्या आपके लिए ये ठीक है? डू यू थिंक लॉर्ड इट्स गोइंग टू बी गुड for me? So you do that and God is going to teach you. Hallelujah. There are so many times I have walked into the supermarket, I walked into the mall. मैं गई थी मॉल में. कितने बार ऐसा हुआ है कि मुझे कुछ चीज लेने का था, लेकिन जब मैं मॉल में गई, मैंने सब देखा, मैंने परमेश्वर से पूछा ये अच्छा लगता है क्या, मैं खरीदी करूं क्या? परमेश्वर ने बोला नहीं. कैसा? परमेश्वर ने बोला कि बड़ा सा आवाज आया? नहीं, अंदर से एक आवाज आ गया
क्योंकि जान पहचान होती है परमेश्वर के आवाज के साथ, क्योंकि आप उपस्थिति में बैठते हैं ना उसके। हालेलुया। व्हेन यू सिट इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, यू नो इट, अंडरएक्टिंग एक लाइट आ जाएगी, ग्रीन, रेड, ऑरेंज, ऐसा कुछ, समझ गया ना? आत्मिकता में हालेलुया। इन द स्पिरिट you will hear a sound, like inside. Yes, this is it, so कितने बार मैं ऐसे ही मॉल में जाकर ऐसे ही बाहर आ गई, कुछ भी खरीदी नहीं की, क्योंकि ऐसा मुझे लगा कि उसने कहा नहीं, मत लेना, ये मत लेना है। अच्छा ठीक है, मैं नहीं लेती। कभी कभी जाती हूँ, एक चीज खरीद कर आती हूँ, कभी कभी जाती हूँ तो इतना कुछ खरीद कर लेके आती हूँ। हालेलुया। क्यों? क्योंकि हमको परमेश्वर से सुनना है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम परफेक्ट है, कि हम सब कुछ परमेश्वर का सुनते हैं। कभी कभी हम भी गलती करते हैं, कभी कभी हम भी हमारे मन का सुनते हैं, लेकिन ये हमारे मन का सुनना हम गिर जाते हैं। When we listen to our own mind and our own thinking, we will fall. But God loves you so much that He's going to pick you up and He will say, "Come on, I'm training you." Hallelujah. आपका ट्रेनिंग हो रहा है आत्मा में। हालेलुया। और परमेश्वर आपके ट्रेनिंग को इतना स्पीड से आगे आपको बढ़ाएगा। हालेलुया। आगे आपको लेके जाएगा। दिस वेरी इंपॉर्टेंट टाइम द अर्थ इज गोइंग टू, इस दुनिया में ये जो समय चल रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके परमेश्वर के लोगों के लिए, खास करके परमेश्वर के चुने हुए लोगों के लिए। परमेश्वर हमको एक ट्रेनिंग दे रहा है कि हम उसके आवाज को सुने, उसके इंस्ट्रक्शंस को सुने, कहाँ जाए, कौन से शॉप में जाए, कौन से घर में जाए, कौन से हॉस्पिटल में जाए, क्या करूं, किसके साथ जाऊं, किसके साथ पार्टनरशिप करूं, ये सब इंपॉर्टेंट चीज आपको करना है। डिपेंड अपॉन द लॉर्ड स्टेप बाय स्टेप। Hallelujah. Please share this video as you are watching, as I'm coming towards the end of it. Hallelujah. And so he listened, he did according to the word of the Lord. Verse 5 says, and stayed by the brook Cherith, which flows into the Jordan. Hallelujah. वो वहां पर ही रुका. Now the next instruction had to come to him, right? He didn't know what to do next. उसको पता नहीं था, अकाल पड़ा था, बारिश नहीं आ रही थी, कहाँ जाऊं उसको पता नहीं था, लेकिन उसको इतना ही पता था कि परमेश्वर ने ये डायरेक्शन मुझे दिया है, और जब तक परमेश्वर मुझे अगला स्टेप नहीं बताता मैं आगे नहीं जा सकता। Until and unless God is speaking to me my next step, I am not going to take the next step. तो वो वहां पर ही रुक गया। और क्या हो गया? The ravens brought him bread and meat in the morning and bread and meat in the evening, and he drank from the brook. Verse 7 says, and it happened after a while that the brook dried up, because there had been no rain in the land. क्या हो गया? वो जो नाला था वो सूख गया, क्योंकि बारिश नहीं था। Praise the Lord. बारिश नहीं था तो नाला सूख गया। तो अब भी क्या होगा? नाला सूख गया, नौकरी छूट गई, ये हुआ, वो हुआ, पैसा खत्म हो गया, पर्स में पैसा नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी बिल ज्यादा आया है, भाड़ा कैसे देंगे, ये कैसा करेंगे। तो ये सोच आते हैं ना हमारे मन में कि हमारा पैसा खत्म होता है, नौकरी छूट जाती है, कोई बीमार पड़ जाता है, नाला सूख गया है, सूखे हुए नाले के पास हम हैं, अभी क्या करना है। तो इस समय हमको बहुत बहुत जरूरी है कि हमारा विश्वास को स्थिर रखना है। हालेलुया। दिस द टाइम यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट गॉड इज गोइंग टू स्पीक टू यू। परमेश्वर आपके साथ बात करेगा। होल्ड ऑन, स्थिर रहो, अपनी नजर परमेश्वर पर डालो। हालेलुया। Amen. So when you put your eyes on the Lord, you wait over there. डरने से कुछ काम नहीं होगा। If you fear and if you panic, you will make wrong decisions. डर के वजह से कितने लोग wrong decisions कर रहे हैं, इमोशन में आकर wrong decision कर रहे हैं। आपको डरना नहीं है। अगर वही परमेश्वर ने आपको कल दिया था, आज भी देगा, आने वाले दिनों में भी देगा। अगर आपका जो नाला है वो सूख गया, if the brook has dried up, wait on the Lord. उसका आवाज आ जाएगा आपके पास। आप परमेश्वर के पास आकर उसकी उपस्थिति में रहो, कुछ नहीं होगा, आप भूखे नहीं पड़ेंगे। परमेश्वर मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ भी गति नहीं होगी। The Lord is my shepherd, I shall not lack anything. Hallelujah. You just wait over there. Wait. How do you wait? You don't wait by saying क्या होगा। हाँ, ऐसा नहीं करना है। आपको वहां पर रहना है और ये कहना है परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं
कि कल मेरे साथ तो था, आज भी है, कल भी रहेगा। ये नाला सूख गया है तो कोई बात नहीं है, मेरी नौकरी छूट गई है, कोई बात नहीं, इफ आई लॉस्ट माई जॉब इट्स ओके लॉर्ड, इफ यू क्लोज वन डोर लॉर्ड यू विल ओपन अनदर डोर। अगर एक दरवाजा तूने बंद किया है तो दूसरा दरवाजा खोल जाएगा। मैं तुझ पर नजर डालती हूँ, मैं मेरा कान आपकी ओर मैं लगाती हूँ, ध्यान लगाती हूँ, जो आप कहेगा वैसे मैं करूंगी। हालेलुया। एंड दैट्स व्हाट हैपेंड टू इलाइजा। द ब्रूक ड्राइड अप, the brook dried up. Then it says, then the word of the Lord came to him saying, उसकी परीक्षा वहां पर हो गई। The test came to him over there when the brook dried up. When the brook is, gushing, gush, and the water is coming and all the blessings are flowing, it's very easy to say, oh, thank you, Lord, you provided me, everything is going fine for me, thank you, Jesus, hallelujah। बहुत आसान है उस समय, when the brook is flowing, नाला बहुत ही पानी दे रहा है, तो इस समय बहुत आसान है। कौवे भी आ रहे हैं, खाना भी मिल रहा है, आसान है, हम खुशी से थैंक यू जीसस बोलते हैं, हालेलुया बोलते हैं। लेकिन नाला सूख जाता है और कौवे भी बंद होते हैं आने का, तब क्या होता है? हाँ, पैसा खत्म होता है, बैंक में कुछ नहीं है, नौकरी छूट जाती है, घर में राशन का कमी पड़ जाती है, तब हमारी परीक्षा होती है। एलिया की परीक्षा वहां पर हो गई, लेकिन बाइबल नहीं कहता है एलिया ने डर के मारे कुछ और किया। उसका वर्ड, परमेश्वर का वर्ड के लिए वो रुका, उसके वचन के लिए वो रुका, और वहां पर आया कि देन द वर्ड ऑफ द लॉर्ड, तब परमेश्वर का वचन यहोवा तक आया और उसने कहा, अराइज, गो टू जरेफात which belongs to Sidon and dwell there. See, I have commanded a widow there to provide for you. उठो, जाओ, सरेफात में जाओ, Sidon and dwell over there. See, I have commanded, मैंने एक विधवा को आज्ञा दिया है आपको प्रोवाइड करने के लिए। पहले परमेश्वर ने कौवे को आज्ञा दिया, अनएक्सपेक्टेड सोर्सेस। नाउ ही इज telling that a widow is going to look after him, unexpected sources। एक विधवा कैसी दे सकती है अकाल में, लेकिन परमेश्वर ऐसे ही काम करता है। हालेलुया। आगे की स्टोरी आपको पता है, और आगे की स्टोरी बहुत मिरेकलस स्टोरी है। जब वो जरेफात में जाता है और वो विधवा वहां पर थी, और परमेश्वर उस विधवा को यूज करता है एलिया को मदद करने के लिए, और वो औरत करती है उसके पास वो उसका आखिरी जो आखिरी आटा था उसका, और आखिरी वो जो तेल था उसके पास, she only had the last bit of oil in the jar, and that's all she had, and she gives it at the word of Elijah। एलिया ऐसा कहता है, मुझे एक रोटी बना कर दे दो, और बाद में आप और आपका बेटा और आपका घराना खाएंगे। और ऐसा ही होता है, वो औरत आकर उसको देती है, और वो एलिया और वो विधवा और वो उसका विधवा का बेटा जो है, उसका पूरा घराना जो है वो विधवा का, सब लोग पूरे अकाल में खाते हैं, उनको कुछ कमी ना होती है। हालेलुया। ये कैसा हो गया चमत्कार, कैसा हो गया? क्योंकि स्टेप बाय स्टेप डिपेंडेंस ऑन गॉड। आप परमेश्वर का बेटा है, आप परमेश्वर की बेटी है। द लॉर्ड इज विथ यू। हालेलुया। द लॉर्ड इज विथ यू। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। डिपेंड ऑन द लॉर्ड स्टेप बाय स्टेप। जो परमेश्वर कहता है वैसा ही करो। अगर आपके जीवन में सब कुछ है, अगर आपके जीवन में कुछ नहीं है, तो फिर ये वचन को याद करना, एलिया का परमेश्वर आपका परमेश्वर है। द गॉड ऑफ इलाजा इज योर गॉड। द गॉड ऑफ अब्राहम, आइजैक एंड जेकब इज योर गॉड। जीसस क्राइस्ट द सेम यस्टरडे, टुडे एंड फॉरएवर। ही वाज विथ यू, ही इज विथ यू, ही विल ऑलवेज बी विथ यू। आपको डरने की कोई बात नहीं है। परमेश्वर आपको यूज करेगा, आपको इस्तेमाल करेगा लोगों तक परमेश्वर का वचन लेने के लिए। आप जाओ, you go where the Lord is sending you. I am speaking to you today prophetically. Go where the Lord is sending you. Do not fear. If God is saying speak this word, speak this word.
परमेश्वर जहां पर आपको भेज रहा है जाओ और आप बात करो, डरना नहीं है कल का क्या होगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के महिमा के लिए हम जी रहे हैं, परमेश्वर के लिए हम जी रहे हैं, उसके नाम को ऊंचा उठाने के लिए हम जी रहे हैं। वी आर लिविंग टू ग्लोरीफाई द लॉर्ड। आवर लाइफ इज ऑल अबाउट हिम। Isn't he going to look after you? क्या आपको लगता है परमेश्वर आपको नहीं देगा? परमेश्वर आपको जरूर देगा। हालेलुया। दुनिया की चिंता को छोड़ो, आगे ही बढ़ता ही चल, पाएगा शांति आराम, जीवन मिलेगा तुम्हें। दुनिया की चिंता को छोड़ो, आगे ही बढ़ता ही चल, पाएगा शांति आराम, जीवन मिलेगा तुम्हें। भूले भटके थे हम, जाते तो जाते कहाँ, किसी ने बताया हमें यीशु मसीह है यहाँ। हालेलुया, कम ऑन। भूले और भटके थे हम, जाते जाते तो जाते कहाँ, किसी ने बताया हमें यीशु मसीह है यहाँ। Sing it with me. महिमा हो तेरी, महिमा हो, महिमा हो तेरी, महिमा हो, महिमा हो तेरी, महिमा हो, महिमा हो तेरी, महिमा हो। आहा हा हालेलुया, 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 आहा। आमेन। Come on, let's anointing of the Lord this moment. Hallelujah. इस वीडियो को शेयर कीजिए। Hallelujah. Let the people be set free from doubt and unbelief. परमेश्वर के वचन पर कभी भी शक ना करना, परमेश्वर के प्यार पर कभी भी शक ना करना। सारी सृष्टि को रचने वाला परमेश्वर आपका परमेश्वर है, आपका पिता है। हालेलुया, वो आपकी रखवाली करेगा। डेफिनेटली डेफिनेटली ही इज गोना हेल्प यू। हालेलुया। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो, करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। हालेलुया। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारे सृष्टि के रक्षक तुम ही हो, करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। आहा
God, for your presence. पिता परमेश्वर, तेरे उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद देते हैं। तेरे वचन के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। तेरे वचन के प्रकाशन के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। Thank you for the revelation of your word. Thank you for the life that is there in your word, Lord. And everyone who has been watching today, I believe, Lord, you have touched them and you have blessed them, oh God, and there will be nobody lacking anything, Lord. किसी को कुछ भी कमी नहीं होगी पिता। तुझ पर निर्भर होने के लिए हमको कबूल करिए पिता। Lord, I pray your grace will be sufficient for your people, oh God. Hallelujah. Unto him, now unto him that is able to do exceedingly abundantly above all that we can ask or even think, according to the power that is working in us, to him be all the glory, both now and forever and ever. Amen and amen. Hallelujah. God bless each and every one of you. Hallelujah. The Lord is good. The Lord is good. And he loves you so much. Until next time, be blessed and please share this video. Jesus loves you. And I do too. Stay blessed.